Okay, students, welcome back. This is the second part of the lecture which we were giving you in the morning. This particular view foil shows you the reflectivity of uniform rays. Now, what is reflectivity? Reflectivity is, let me write it down here. Let's see. Okay. So reflectivity का formula क्या होगा? It will be एक मिनट. And the reflectivity is basically annotated by neta, okay, which is equal to text लिखा जा सकता है इसमें, which will be equal to sigma. Sigma नहीं आएगा. I'll just put the draw thing again. Which is equal to your sigma clutter divided by volume of the clutter. Okay? And this is your neta. ठीक, तस्वीर नजर आ रहा है तुम्हें ये? हेलो, तस्वीर क्लियर हो रही है बात? ये नीटा इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द क्लटर डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम इट कवर्स. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सिस्टम. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो जी सर. हाँ, तो अब बेसिकली ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको ये बता रहा है कि इसको मैं खत्म कर देता हूँ and then let me start this. Now you know what a reflectivity is. So it is telling you कि it is a function of frequency. ठीक है, ये जो है S band क्या होता है? यानी about 3 gigahertz है. ये C band 5.6 gigahertz, X band 9.3 gigahertz, K band 35 gigahertz है. ठीक है. Now, and this is the type of the rain you have. अगर drizzle हो रही है, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही है, so can you see your reflectivity is -102. reflectivity भी मैंने आपको बता दी कि that is your clutter cross sectional area divided by the volume it covers. ठीक है, और आप यहाँ देखिए it is -58, यानी इतना टाइम्स फर्क पड़ गया, यानी ज्यादा हो गई. सिमिलरली अगर लाइट रेन है तो दिस इज -92, और अगर सी बैंड फ्रीक्वेंसी में इट इज -81.5, एक्स बैंड में इट इज -7.2, और के बैंड में इट इज -49. सो सिमिलरली एक और हम देख लेते हैं कि अगर हैवी रेन है तो इट इज -73, -62, -53, -33. इसका क्या मतलब है कि जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, योर clutter return will become more, it will become stronger. और यही बता रहा है कि the rain reflectivity increases as frequency to the power of 4, or 1 over lambda to the power 4. The clutter rain is an issue in S band and a significant one at X band or higher frequency. Significant का क्या मतलब होता है? Something which is very prominent. Rain तो हमेशा issue होता ही है, लेकिन यहाँ it's really less. लेकिन यहाँ it's really very significant. देखिए मैं अब आपको अगर
पीछे जाके डायग्राम दिखाऊं एक, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं, दिस इज योर RCS per unit area, sigma naught, ठीक है। And can you see this? I told you के the more on the negative side you are better. तो जितना आपका लो ग्रेजिंग एंगल होगा उतना बेहतर होगा, जितना आपका ग्रेजिंग एंगल हाई होता रहेगा सिस्टम में खराबियां आती चली जाएंगी। और आप ये देखिए कि यहाँ आपको बता रहा है कि इवन अगर आपका सिस्टम vertically polarized होगा तो it is more bad at initial stages. Horizontally polarized is better, right? लेकिन एक खास टाइम के बाद when your grazing angle increases above, let's say 58, so it's both for यानी सेम फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। ये ग्रेजिंग एंगल है आपका और ये क्या है आपका, दिस इज योर RCS पर यूनिट एरिया, ठीक है। यूं यूं आपका ग्रेजिंग एंगल बढ़ेगा आपकी क्लटर रिटर्न भी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, हत्ता के इट विल बिकम zero and then it will become on the positive side. The more negative is more lesser. So negative is better, ठीक है। And if the grazing angle increases, your clutter return increase. At the same time अगर आपकी polarization different होगी तो यानी at the lower grazing angles obviously your horizontal polarization is better than vertical polarization as shown by these two curves. But after say this particular frequency, अगर ये 30 है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें 40 50 60, तो आप समझिए अप्रोक्सीमेटली 50 डिग्री ग्रेजिंग एंगल के बाद फिर फॉर बोथ horizontal and vertical polarization it remains same. So let's finish the slides. अब ये आपको डायग्राम, ये वाला डायग्राम तस्वीर समझ में आ गया तुम्हारे? कोई सवाल पूछना है इसके अंदर? सर क्या पूछना है? हेलो सर। हाँ, कोई सवाल जी पूछना सर। चाह रहे हो? कोई सवाल पूछना चाह रहे हो? नो सर। अच्छा जल्दी से बता दो दोबारा। देखो ड्रिजल क्या, ड्रिजल को उर्दू में क्या कहते हैं? बूंदाबांदी। लाइट रेन हल्की बारिश, मॉडरेट हल्की बारिश मतलब सर। 4 मिलीमीटर पर आवर, ये 1 मिलीमीटर पर आवर है। एंड फाइनली हैवी रेन का मतलब 60 मिलीमीटर पर आवर। कैन यू सी योर the intensity of rain increases. जो जो intensity of the rain increase होगा, what तुम अपने माइक को जरा म्यूट कर लो, आवाज आ रही है, ठीक है। तो जो जो तुम्हें अपनी इंटेंसिटी ऑफ द रेन इंक्रीज होगी, आप देखिए क्लटर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, क्लटर बढ़ता चला जा रहा है, क्लटर बढ़ता चला जा रहा है, क्लटर बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब जितनी तेज बारिश होगी उतनी आपकी रिफ्लेक्टिविटी would be different because it is showing you the reflectivity. और यानी जितनी ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी होगी उतना ज्यादा क्लटर आएगा, ठीक है। तो ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी का मतलब है मोर क्लटर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये नजर आ गई कि बारिश के बढ़ने से क्या हो रहा है, क्लटर बढ़ रहा है। बिकॉज मैंने कहा था नेगेटिव में ज्यादा नंबर का मतलब है कम रिफ्लेक्टिविटी, ठीक है। और अगर नेगेटिव नंबर कम होता चला जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा ज्यादा रिफ्लेक्टिविटी। अगर मैं 0 लिख दूंगा इसका मतलब बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव, पॉजिटिव 1 और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक तो आपने ये कंपेयर कर लिया, साफ कंपेरिजन है। दूसरा कंपेयर फ्रीक्वेंसी वाइज करो कि जूं जूं आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी आपकी रिफ्लेक्टिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी एंड इट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट एट द हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट्स रियली हाई, ठीक है। रेन रिफ्लेक्टिविटी इंक्रीजेस एज फ्रीक्वेंसी रेज टू पावर 4 और 1 over lambda रेज टू पावर 4। तो कहता है कि रेन क्लटर जो है इशू तो होता है
एस बैंड पे, लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है जब आप के ए बैंड में या एक्स बैंड में आ जाते हैं, ठीक है। और दिस स्लाइड ये आपको बताता है कि रेन जो है वो एक गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मीन वैल्यू वेरीज एज स्टॉर्म मूव्स बाय द रेडार। In each example, the rainfall rate was approximately 20 millimeters per hour, और जो हवा थी वो 30 नॉट्स ऑन ग्राउंड थी और 50 नॉट्स ऑन एयर थी। तो आप ये देखिए कि दिस इज व्हाट इज योर Doppler frequency and the kind of attenuation the system gives. You are measuring S-band Doppler spectra in rain. आप देखिए जब हवा है तो ये आपकी डॉपलर आ रही है, ये आपकी डॉपलर आ रही है, ठीक है। यानी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज चेंजिंग, योर स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड ऑफ द air is changing and it is shifting your Doppler shift. Can you see? And if this is the kind of speed, अगर आप देखिए ये आपकी particular speed होगी तो इतनी dB attenuation होगी. So this is giving you a return of clutter as a function of speed of the rain. ठीक है? And this is what your average becomes. ये आपको basically तीनों बताएं कि azimuth at 90 degrees, azimuth at 320 degrees, and azimuth at 330 degrees. ठीक है? And finally, he has given you a curve here. ठीक है ना? This is what it is, an average which is 6 knots, which is really phenomenal. Chaffs. चैफ्स के बारे में मैंने एक लेक्चर ये वाला हिस्सा बना के भेज दिया था। चैफ्स होते क्या है तुम्हें पता है? क्या कहते हैं तसव्वुर, चैफ क्या होता है? व्हाट इज अ चैफ? नॉइज सर। नहीं, चैफ नॉइज नहीं होता। चैफ जो होता है, दे आर डायपोल्स, मेटालिक डायपोल्स, ठीक है, कोटेड विद एल्यूमिनियम, ठीक है। अब आप करते क्या है कि λ/2 की स्ट्रिप्स काट लेते हैं और फाइबर ऑप्टिक्स की बनाते हैं ताकि हल्की रहे, उसके ऊपर एल्यूमिनियम को कोट कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे रिफ्लेक्टिविटी बहुत हाई आती है और जब आप उसको आसमान पे ड्रॉप करते हैं तो वो पूरा एक स्क्रीन बन जाता है। और ये मैंने इसकी कल एक 10 मिनट की पूरी एक वीडियो बना के भेजी थी, इसको आप देखिएगा। इसके अंदर एक पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन है जो मैं यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा, इसीलिए मैंने वो पहले से बना के देखी थी। मज़ाहिर अली तुमने देखी थी वो वीडियो जो कल मैंने पोस्ट की थी? तसव्वुर तुमने देखी थी वीडियो? नहीं सर, कल से नेट नहीं आ रहा था ना। अच्छा अच्छा अभी देख लेना, ठीक है, फौरन देखना। वो 5 मिनट की वीडियो है, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सर अभी बताने की बात ये है कि यानी व्हाट इज योर चैफ बिल्कुल इस तरह की पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं जैसे ये मैंने बनाई, ठीक है। और ये पर्टिकुलर स्ट्रिप जो है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिप किसके बराबर होगी? दिस विल बी लैम्डा बाय टू की स्ट्रिप। तो सर बेसिकली चैफ जो है ये डिटेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है रडार की। हाँ, बेसिकली होता ये है कि आप जब एनिमी एरिया में जाते हैं तो आप चैफ को डिस्पेंस कर देते हैं और फिर जब वो हवा से फैलता है तो वो बिल्कुल यानी आपकी स्क्रीन को टोटली ब्लॉक कर देता है। ये आप अभी वीडियो देखिएगा ना जो मैंने पोस्ट की है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। खाली कुछ नहीं होता, अभी मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। तो दे आर स्ट्रिप्स ऑफ λ/4 और λ/2 जो जब डिस्पेंस कर दी जाती है हवा में
तो वो मूव करती हैं और इट एक्ट्स लाइक अ स्मोक फॉर एन आई। अगर हम जैसे गाड़ी चला रहे हैं और एक ट्रक जिसके अंदर काला काला धुआं है, तो क्या होगा, हमें आगे तो कुछ नजर नहीं आएगा ना, और वो जो आगे वाली चीज है वो हमारी आंखों से ओझल हो जाएगी। एग्जैक्टली द सेम थिंग इज हैपनिंग। आ रही है बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉनिकली आपकी जो वेव्स हैं उनको टकरा के वापस आ जाती हैं, उसके पीछे जो रेडार या मिसाइल होता है वो नजर नहीं आता। तो अब देखिए इसका यूज लिखा है, यूजेस ऑफ चेफ क्या है। यानी पहला यूज क्या है, मास्किंग। ठीक है, यानी मास्क का क्या मतलब है, लार्ज क्लाउड कैन शील्ड द एयरक्राफ्ट और मिसाइल इन और नियर द क्लाउड। और दूसरा डिसेप्शन, यानी चैफ पफ कैन इम्यूलेट, इम्यूलेट का मतलब नकल कर सकते हैं उसका, a missile or aircraft and cause false detections. Packet of chaff can divert radar tracker from the target. ये सारी चीजें आप बेसिकली कर रहे हैं चैफ से। ठीक है, ये बात सबके समझ में आ गई? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। चैफ रिफ्लेक्टिविटी एंड डेंसिटी। ठीक है, रेजोनेंट मेटालिक डायपोल्स होते हैं जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो 0.18 lambda square in meter square, एवरेज क्रॉस सेक्शन पर डायपोल। बैंडविड्थ इसकी 10 to 15% ऑफ द सेंटर फ्रीक्वेंसी होती है, एंड फॉल रेट्स हैं 0.5 to 3 मीटर per second. I mean, this is your resonant metallic dipoles. फिर एल्यूमिनियम फॉइल डायपोल्स, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है जो यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, और ये बेसिकली ALE38 है, चेफ डिस्पेंसिंग डिवाइस। ठीक है, अब आप देखें इसके अंदर क्या है, ये दिस इज योर वाटर सेपरेटर, दिस इज बेसिकली एन एयर सिलेंडर, और उसके बाद ये आपके कार्ट्रिजेस हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्ट्रिजेस। ठीक है, देयर इज बेसिकली अ मोटर है। ठीक है, एंड अब होता है क्या, अब ये एक आप कार्ट्रिज देख लें, तो ये कार्ट्रिज क्या होगा, जैसे आपका टिश्यू रोल होता है, टिश्यू रोल की तरह ये रोल होता है, इनके अंदर आपके चैफ्स लगे होते हैं, जैसे ये यहाँ दिखाया मैंने, ये आपका रोल है और ये आपके चैफ्स लगे हुए हैं। ठीक है, और बेसिकली ये रोलर्स में लगा होता है, तो ये दो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, एक ये रोलर है और दूसरा रोलर आपका ये है। दिस इज योर वन रोलर, दिस इज द अदर रोलर। ठीक है, और ये वाली जो चीज है, ये आपको जो नजर आ रही है, ये इस टेकअप रोलर से बाहर निकलती है, एंड देन यू हैव एन एयर डक्ट हेयर, और यहाँ से आपके चैफ्स जो है डिस्पेंस हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई? और जब ये डिस्पेंस होते हैं तो ये फिर जैसे यूं समझो कि आपने बहुत सारी छोटी छोटी वायर, बहुत हल्के वायर हवा में डिस्पेंस कर दिए। ठीक है, एंड उससे जो रिफ्लेक्टिविटी आती है, वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा एक रेडार के सामने स्मोक स्कीन आके। जैसे ही मेरी खत्म होती है, आप अपने ग्रुप पे जाइएगा और वो 5 से 10 मिनट की वीडियो है, उसको आप देख लीजिएगा। इसकी मैंने ये पूरी वीडियो पोस्ट की है उसमें। ठीक है, तो सर चैफ की कोई लिमिट होती होगी ना, एक हद तक इसको हम डिस्पेंस कर सकते हैं? कार्ट्रिजेस डिस्पेंस कर सकते हैं, मतलब जितने इस पर्टिकुलर पॉड में मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 हैं तो आप 6, और इसके अंदर हजारों के करीब हैं, हजारों चेफ्स होते हैं, ये लगे हुए सारे डायपोल, 1 2, तो आपको 6 इन रो नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये डिस्पेंस हो जाएंगे, फिर अगला चीज सामने आ जाएगी, वो डिस्पेंस हो जाएंगे, फिर वो डिस्पेंस हो जाएंगे। तो जब आप यानी जब चैफ्स डिस्पेंस होते हैं, आप 3-4 घंटे बाद जमीन में आए तो आपको लगेगा पतली 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 तार पड़े होते हैं। पूरा जो आपका एरिया होता है
भरा हुआ होता है पतली पतली मेटालिक स्ट्रिप्स के साथ, यानी पूरी जमीन कवर हो जाती है। लेकिन चूंकि बहुत हल्के होते हैं तो काफी देर तक हवा में सस्पेंड रहते हैं, और अगर हवा चल जाए फिर तो बहुत ही अच्छा होता है, पूरा एरिया जो है वो आपका ब्लैंक हो जाता है। अभी आप जब वीडियो देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। ये वीडियो मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकता कि अभी इसके साथ वो इंटरफेस नहीं है, लेकिन मैंने इसकी रिकॉर्डिंग इस तरह की थी कि वीडियो को चला के फिर रिकॉर्ड किया था, तो वी हैड एवरीथिंग विद अस। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके बात? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब बर्ड्स एंड इंसेक्ट, ये बिल्कुल आखिरी स्लाइड है कि ये जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं ये भी स्क्रीन पे क्लटर क्रिएट करते हैं, और आपका पूरा स्क्रीन जो होता है वो इनसे भर जाता है, बिकॉज व्हेन बर्ड्स आर फ्लाइंग दे क्रिएट अ डॉपलर शिफ्ट। ठीक है, और ये जो आपको स्पेशली जब इनका ब्रीडिंग सीजन, इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है और विंटर में माइग्रेट करते हैं ये, ठीक है, और पूरे साल जो उड़ते रहते हैं, तो यानी ब्रीडिंग सीजन में ये जो आपको येलो एरिया नजर आ रहा है, दिस पर्टिकुलर येलो एरिया ये वाला येलो एरिया आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यानी ये ज्यादा इफेक्ट होता है बिकॉज दे आर जनरली फ्लाइंग इन दिस एरिया। ठीक है, पूरे साल यानी ये जो आपको ब्राउन एरिया, यानी पूरे अमेरिका में और कनाडा में और ये नीचे की तरफ पनामा में हर जगह दे फ्लाई। ठीक है, दिस वाज द ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, दिस वाज योर ईयर राउंड एंड दिस इज योर विंटर सीजन। यानी विंटर सीजन में आप देखिए ठंडे इलाकों से ये नीचे का जो अमेरिका है ये कराची जैसा है, ये दे ऑल स्टार्ट फ्लाइंग। जब वो फ्लाई करते हैं एंड दे आर कमिंग हियर, सो दे आर shown on the radar as clouds। ठीक है, अब लिखा है ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सी, अब ये लिखा हुआ है यानी कि ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन अलोंग द गल्फ कोस्ट सी एंड वेडिंग बर्ड कॉलोनीज एग्जिस्ट and have up to 60,000 birds. 10,000 birds are common. These birds are large, weighing up to 1 kilogram and having wing spreads from 0.75 to several meters। बड़ी birds होती हैं, फ्लेमिंगोज जो होती हैं, अगर आपने देखी है तो फ्लेमिंगोज are really big birds। ठीक है, ओके। अब आप देखिए ये मुख्तलिफ बर्ड्स दिखाई हैं उन्होंने। ठीक है, कि स्पॉटेड टाउही, ब्लैक टर्न, नॉर्दर्न हैरियर, द बिग बर्ड्स, एंड दीज बर्ड्स आर डिपिक्टेड इन दीज एरियाज। ये ब्रीडिंग सीजन में इस तरह डिपिक्ट होती हैं, आपके ईयर अराउंड इस तरह डिपिक्ट होती हैं, विंटर सीजन में इस तरह डिपिक्ट होती हैं। ठीक है, सो अब इसको मैं पढ़ नहीं रहा, मतलब जनरली इसको जस्ट गो थ्रू इट। और ये बेसिकली वो बता रहे हैं कि बर्ड्स किस तरह आपके रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, बर्ड रेडार क्रॉस सेक्शन एरिया डेटा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ द बर्ड्स। जूं जूं आपकी बर्ड्स बढ़ती हैं, अगर लेट्स से 60,000 के करीब बर्ड्स हैं, तो जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह का हो जाएगा। So the cross-section area changes as the number of birds increases। अच्छा, अब इसमें दोनों चीजें आप इसको दोनों तरीकों से देख सकते हैं। दूसरा तरीका आप ये देख सकते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ज्यादा होगा तो हाउ वुड दे इफेक्ट द रेडार। Even though the radar echo of bird is relatively small, bird densities are so great that the birds can often overload the radar with false targets। तो बहुत ज्यादा birds fly करती हैं तो वो आपके receiver को overload कर देती हैं। Since birds move at relatively low velocities, this
The speed, if measured, can be used to preferentially threshold out the low velocity birds. ठीक है, अब आपको ये दो चीजें बता रहा है. पहली चीज ये बता रहा है कि बर्ड्स जो हैं दे स्मॉल, अगर इंडिविजुअल बर्ड्स फ्लाई करेंगी तो आपका आईएसयू उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना, यानी आपकी थ्रेशोल्ड ज़्यादा ही नहीं होगी. लेकिन जब वो पूरी पूरी कॉलोनीज फ्लाई करती हैं तो उसकी रिटर्न इतनी ज़्यादा होती है कि वो रेडार को ओवरलोड कर सकती है, ठीक है. लेकिन फिर भी बर्ड्स की फ्लाइंग स्पीड बहुत कम होती है. तो जब आप डेटा प्रोसेसिंग में जाते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि अगर मेरा हवाई जहाज़ होगा तो कम से कम उसकी स्पीड 300 नॉट्स होगी, ठीक है ना. बर्ड्स तो इतनी हाई स्पीड से फ्लाई नहीं करती, ठीक है. तो अगर वो आपको 4 नॉट 5 नॉट 20 नॉट्स तक की भी स्पीड आ रही है तो आप उसको लो स्पीड टारगेट कह के रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है. ये बात सबके समझ में आ गई. Now, this brings us to our one of the last slide. ये आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें रेडार पे किस तरह डिपेक्ट हो रही हैं, कि रेडार एंड बीकन्स कैसे होंगे, बीकन ओनली कैसे होंगे, रेडार अनकोरिलेटेड कैसे होंगे, रेडार कोरिलेटेड कैसे होंगे. यू सी attribute to birds. Birds are actually moving point targets. Velocity usually are less than 60 knots. तो आपके जो जहाज हैं वो 140 नॉट से ऊपर फ्लाई करते हैं. मीन रेडार क्रॉस सेक्शन इज स्मॉल बट अ फ्रैक्शन ऑफ बर्ड रिटर्न फ्लक्चुएट अप टू अ हाई लेवल लाइक एयरक्राफ्ट, ठीक है. क्रॉस सेक्शन is resonant at S band and L band. Lot of birds per square mile, ठीक है. यानी अगर आपके पास 10 to 1000 birds per square mile है तो obviously they will clutter and overload the radar, ठीक है. And finally, bird cause a false target problem in many radars. Any significant issues of when detecting target with low cross section areas. So इंसेक्ट्स भी अगेन उसी तरह से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. अब समरीज की हम पढ़ लेते हैं कि अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडार क्लटर रिटर्न्स हैव बीन डिस्क्राइब. इसमें हमने ग्राउंड क्लटर पढ़ा, सी क्लटर पढ़ा, रेन पढ़ा, बर्ड्स पढ़े, इंसेक्ट्स पढ़े, ठीक है. These environmental and man-made phenomena will produce a variety of discrete and diffuse moving and stationary false targets unless they are dealt with effectively. A number of signals and data processing techniques can be used to suppress the effect of these clutters, ठीक है. क्योंकि ये तीन आपके salient features थे और वो तीन salient features हमने डिस्कस कर लिए. तो क्या है तीन salient feature आपके? पहला फीचर क्या है कि बहुत किस्म के क्लटर एनकाउंटर होते हैं, ठीक है. आपका रेडार क्लटर 3 या 4 बेसिक कैटेगरीज में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ग्राउंड क्लटर, सी क्लटर, रेन क्लटर, बर्ड क्लटर, ठीक है. फिर उसने कहा कि ये चाहे मैन मेड हो, चाहे इन्वायरमेंटल हो, यानी चाहे नेचुरल हो, चाहे सिंथेटिक हो, दे अफेक्ट योर रेडार, ठीक है, unless you're not dealing with them effectively. And finally, जो आपकी डेटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं उसमें बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिससे आप क्लटर को सप्रेस कर सकते हैं. जैसे कि बर्ड के केस में हमने स्पीड को फैक्टर बना लिया. हमने कहा 60 नॉट से ऊपर तो ये फ्लाई नहीं कर सकती, और जहाज जो है वो जनरली फ्लाई करता है 140 नॉट से ऊपर. एनीथिंग मोर देन 60 नॉट्स वुड बी रिजेक्टेड एनीवे, ठीक है. इसलिए गाड़ियां भी, जो आपका ग्राउंड क्लटर है वो भी उतनी स्पीड से चलता है, ठीक है. ये हमने समरीज की देख ली. एंड विद दिस आई थिंक आज का लेक्चर हमारा खत्म हो गया. दिस वाज द लास्ट स्लाइड. और रेफरेंसेस ये आपकी जो कोर्स बुक है स्कॉलनिक की 3rd एडिशन, ठीक है. ये बाकी 2 एडिशंस जो हैं ये रेफरेंस बुक्स हैं, ये आपकी कोर्स बुक्स, ठीक है. तो
आई होप तसव्वुर तुम्हें समझ में आया लेक्चर कि तुम्हें कुछ सवाल यस पूछना है? सर। ठीक है। और मज़ाहिर, ठीक है। मैं यस सर। अच्छा देखिए, जस्ट हमारे पास टाइम है तो क्या टाइम है, हाँ 5 मिनट में मैं इसको जल्दी से रिवैम्प कर देता हूँ कि हमने पढ़ा क्या था। ज़्यादा मैं आपको टाइम नहीं दूंगा अभी, इसलिए कि मेरी भी एक मीटिंग शुरू होने वाली है, ऑलरेडी शुरू हो गई होगी, 11 बजे शुरू होगी। अब आप ये देखिए, ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है कि टिपिकल डायग्राम बता रहे हैं रेडार क्लटर का, एंड एट द सेम टाइम लेट मी एनोटेट ताकि मेरा हाइलाइटर ऑन हो जाए। अब आपको ये बता रहा है कि जो क्लटर है, यानी बेसिकली हम कौन सा एरिया डिस्कस कर रहे हैं जहां ये मेरा हाथ घूम गया। तो क्लटर आपका वो होता है जो अनवांटेड टारगेट होता है। तो अगर आप एक ऐसे एरिया में जहां बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और आपका एक पर्टिकुलर टारगेट भी है, इस इससे जो रिटर्न आएगी दैट विल बी अ टारगेट क्रॉस सेक्शन, और इससे जो रिटर्न आएगी दैट विल बी रेडार क्लटर क्रॉस सेक्शन, जिसे हम सिग्मा विद द सफिक्स सी कहते हैं। ठीक है। और ये प्योर सिग्मा जो है ये टारगेट क्रॉस सेक्शन है। बाद दफा इसको सिग्मा विद द सफिक्स टी, छोटा सा टी लगा देते हैं ताकि टारगेट और रेडार क्रॉस सेक्शन में फर्क आ जाए। तो अब हमें देखना है कि क्लटर कितने किस्म के हैं। ठीक है। और इसके लिए गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यानी दिस इज अ मोटिवेशन आपके लिए कि आप क्यों क्लटर को पहचानना चाहते हैं। इसलिए कि क्लटर हमारा दुश्मन होता है, और क्लटर में हम देखते हैं कि रिसीवर नॉइज, एटमॉस्फेरिक नॉइज, इंटरफेरेंस रेडार से या जैमर से, और फिर नेचुरल चीज़ों से, ग्राउंड, सी, रेन। चैफ इज मैन मेड, यानी दे आर बेसिकली डायपोज, जो भी मैंने डिस्कस किया। और मैंने आपसे कहा था इसकी मैंने कल एक 10 मिनट की वीडियो बना के भेजी है, ये आप देख लीजिए। बर्ड से ग्राउंड ट्रैफिक, ग्राउंड ट्रैफिक का मतलब रोड्स पे ट्रैफिक होता है, तो ये सब आपका ग्राउंड क्लटर देते हैं। ठीक है। ग्राउंड क्लटर क्या होता है? ग्राउंड क्लटर जो बैक स्कैटर होता है उसको आप देखते हैं, जो ग्राउंड से बैक स्कैटर होता है, और दे आर जनरली बहुत लार्ज होता है कंपेयर टू द मेन टारगेट क्लटर, और उसको स्टैटिस्टिकली हम उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पेशल रेजोल्यूशन, ज्योमेट्री और टेरेन टाइप से एवेल्युएट करते हैं। क्लटर के अंदर डॉपलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, जैसे दरख्त जब हिलता है तो वो बेसिकली आपको डॉपलर भी देता है, और जो रिलेटिव मोशन एंटेना का होता है शिप और एयरक्राफ्ट की वजह से, वो भी आपको क्लटर देता है। ठीक है। फिर हमने ये बताया था कि अगर ये बहुत ज़्यादा क्लटर आएगा और आप 0 dB अटेनुएट करेंगे क्लटर को, तो आपका स्क्रीन पूरा क्लटर से भर जाएगा और आप उसके अंदर टारगेट नहीं देख सकते। यहाँ आपने 60 dB की अटेनुएशन दे दी। 60 dB का मतलब अबाउट 1 मिलियन टाइम अटेनुएट किया, तो अब क्या हुआ, यानी आपका स्क्रीन तक बहुत क्लीन हो गया, और अगर कोई टारगेट यहाँ से आएगा तो आपका क्लियरली आ जाएगा इस जगह पे जहाँ क्लटर सेंटर में वहाँ आपको मुसीबत होगी। फिर हमने यहाँ बता दिया कि ये 0 क्लटर के साथ स्क्रीन है, ये 10 dB, 20, 30, 40 और 50 dB तो बिल्कुल सेंटर में। इसका मतलब ये कि अब आपका पूरा रेडार स्क्रीन क्लियर है, तो जो भी एयरक्राफ्ट आएगा उसको आप डिटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। फिर हमने ग्रेजिंग एंगल के बारे में बताया, पेज 404 एंड 405, इसको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। ठीक है। अब क्योंकि हम बस रिवैम्प कर रहे हैं, या आप तसव्वुर से पूछिएगा वो आपको बता देगा। ठीक है। यहाँ हमने ये बताया था कि जो आपका टारगेट क्लटर अगर 1 रिटर्न दे रहा है फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर, यानी सेस्ना जैसे छोटे जहाज से, तो आपका जो जमीन से क्लटर है वो 1500 गुना ज्यादा आएगा। ठीक है। और क्लटर रेशियो 20 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर यानी वो कह रहा है कि 15 into 20, यानी जो आपका क्लटर फ्रॉम ग्राउंड है इनटू द रेशियो ऑफ क्लटर इनटू टारगेट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो you will get 30,000, which will be approximately इतना dB। सर अस्सलाम वालेकुम। बस बस सर आ रहा हूँ सर, मेरी बस 5 मिनट रह गए, मेरी क्लास खत्म हो रही है, बस मैं आ रहा हूँ। राइट। ये आपके समझ में आ गई बात? तसव्वुर, मज़ाहिर? यस सर।
आपके भी समझ में आ गई? देखिए दिस दिस इज, यस सर, यस हाँ सर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखिए दिस इज, ये क्या है, ये आपका, मैंने आपको बताया था ना, सिग्मा टी, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी आरसीएस जिसे आप कहते हैं, आरसीएस ऑफ द टारगेट जो हवाई जहाज से आ रहा है। और ये क्या है, सिग्मा सी, दिस इज द आरसीएस ऑफ योर क्लटर। तो अब आप देखें कि अगर 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया का आपका एयरक्राफ्ट होगा, विच इज योर स्मॉल एयरक्राफ्ट लाइक सेस्ना या चेरेकी वगैरह, तो वो अगर आपको एक रिटर्न दे रहा है, यानी 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया दे रहा है, तो कम से कम क्लटर भी आपका 1500 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का रेशियो क्या है, 20। ठीक है, और ग्राउंड क्लटर अगर 1500 है, तो आप सप्रेशन ऑफ क्लटर का फैक्टर क्या होना चाहिए, यू विल मल्टीप्लाई योर RCS of the clutter by the factor of 20, और जब इस 30,000 का आप dB लेंगे तो that will become 45 dB. This should be your suppression factor. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन जो आपके जहन में चाहिए। बस उसके बाद ये आसान सी चीज़ है कि जल्दी से आपके पास डेटा होना चाहिए। सो 1982 से 84 तक उन्होंने 42 साइट्स पे मुख्तलिफ टेरेन्स, यानी पहाड़ियों में, झीलों के पास, समंदर के पास, हर जगह से डेटा कलेक्ट किया, और फिर उस डेटा को अमेरिका ने, कनाडा ने और यूनाइटेड किंगडम ने, सब ने इस्तेमाल किया। ठीक है, अब ये एक टिपिकल टेरेन है। अब वो कह रहा है कि देखिए ये पहाड़ी पे आपका रेडार लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ भी एक छोटी पहाड़ी है, यहाँ आपका एक दरख्त है, फिर पहाड़ी आ गई, फिर एक घर आ गया, फिर पहाड़ी आ गई। तो इनका जो शेडो है, यहाँ माइक्रो शेडोइंग लिखा है, ये जो आपका शेडोड एरिया है, शेडेड एरिया है, इसके अंदर आपका टारगेट पिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी। फिर ये उसने फर्दर इसको एक्सप्लेन किया कि अगर आप यानी आपको रेडार पैरामीटर्स, ज्योमेट्री, टेरेन फीचर्स, ये मैंने कल के लेक्चर में सब कुछ पढ़ाया था। ठीक है, और ये उसने बताया था कि फ्रीक्वेंसी वर्सेस मीन ऑफ सिग्मा जीरो कैसे कैलकुलेट होता है। दिस शोज, जो अभी हमने आगे भी एनालाइज किया था, कि जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी आपकी डिटेक्शन ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा होगी आपकी डिटेक्शन रेंज कम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट इट सेज। और ये फिर मुख्तलिफ किस्म के रेंज रेजोल्यूशन हैं, यानी ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर, ये कल के लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन हुआ था। ठीक है, फिर हमने बताया, ये आज हमने पढ़ा कि भाई एट्रीब्यूट्स ऑफ सी क्लटर क्या होते हैं। फिर हमने बताया आपको कि जो आपकी मीटरोलॉजिकल साइट्स जो है, या मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ये बेसिकली लव्स मीटर से निकला है। ठीक है, तो दिस इज मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो यानी सी की स्टेट्स क्या होंगी, अगर 0 to 1 होगी तो काम होगी, 2 पे इट विल बी स्मूथ, 3 पे इट विल बी स्लाइटली मॉडरेट, 4 पे रफ हो जाएगी, वेरी रफ एंड हाई। अब ये मैंने डिटेल में इसको, फिर हमने बताया था कि एट लो ग्रेजिंग एंगल्स समंदर की स्पाइक्स भी आप देख सकते हो, और ये स्पाइक्स जो हैं ये फॉल्स टारगेट्स पिक करते हैं। ठीक है, देन हमने बताया कि रेन कैन प्ले हैवक, और रेन जब हवा के साथ मूव होती है, तो आप देखिए ये क्लियर डे पे स्क्रीन नजर आ रही है, और एक ये रेनी डे पे नजर आ रही है। तो इस एरिया में जहाँ मेरा हाथ जा रहा है आप पिक ही नहीं कर सकते, इस सूरत में क्लियर डे में आप हर जगह पिक कर सकते हैं। फिर ये वाला मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ किस्म की रेन क्वांटिटी के साथ आपकी रिफ्लेक्टिविटी डिफरेंट, रेंज जितनी ज़्यादा होगी उतनी रिफ्लेक्टिविटी ज़्यादा होगी, रेंज जितनी कम होगी, बूंदाबांदी हो रही होगी, तो बूंदाबांदी में आपकी रिफ्लेक्टिविटी कम है, माइनस है ना, -102। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी। तो अगर इफ इट इज ड्रिजलिंग या बूंदाबांदी हो रही है तो -102 होगी, और अगर हैवी रेन होगी तो -73 है।
सिमिलरली अगर आप देखें फ्रीक्वेंसी आप बढ़ा देंगे तो रिफ्लेक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, विच इज बैड। और इसको फर्दर वो बताता है कि रेन क्लटर इशू तो है, यहाँ भी इशू है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने इस डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया एंड फाइनली हम चेफ पे आए। और फिर ये एक छोटी सी वीडियो है जो मैंने आपको अलग से पोस्ट की है, एक 5 मिनट की वीडियो में आप देख लीजिएगा। फिर हम बर्ड्स और इंसेक्ट्स पे आए एंड फाइनली हमने इसको समराइज कर लिया और दोबारा भी आपको रिवाइज कर दिया, ठीक है। विद दिस वी एंड आवर लेक्चर। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है तसव्वुर तुम्हारा? एनी क्वेश्चन तसव्वुर? मज़ाहिर आपका कोई क्वेश्चन है? नो सर। ओके, विद दिस ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।